everyone. I am Pritam Bhumi, a student of Pranandupur Jagannath Institution, and I make a online teleconsultancy platform with the doctors where the patient can consult with the doctors at a reasonable cost and they get the high valuable consult from the doctors. The doctors can speak with their mother tongue, so the patient can easily communicate with the patient, with the doctors. And then, and in my first in my platform there are two things I mainly observe, that is two doctors and patients. And here doctors come and patients need to book their appointment with their comfortable doctors and comfortable understandable language with the doctor. Then the patient need to pay rupees 600. If the doctor noticed or realized that the patient need to a discount of the consultancy session, then if the doctor decide, if wish, and if the doctor tell us, we can refund a special discount to the patient for this consultant, and for future the patient can get a special discount for the further consultancy in my platform. And it is a platform and totally different in online, and patients book their consulting sessions through the website and they pay the amount. After paying this amount, they need to confirm the details and wait for the time they book, and patients and doctors come in the time and they consult with the patients. If there are here, patients get the prescription, e-prescription, and that is called online prescription. No physical things are provided, but if the patient wishes to get a physical prescription, he can get. But here he need to pay extra amount for prescription. He need to pay 50 rupees, and for delivery charge based on their location or delivery addresses. So in my platform, the patients can get a teleconsultancy or telemedicine consultation with their doctors. But we use this teleconsultancy for the doctors who live farther from the patient's home or patients where the patients can not reach to the doctors. So we need to use the teleconsultancy for a good or well use. We need to use this teleconsultancy for our future advices. Thank you. हम लोग आप देख रहे हैं ये ओसा केयर का पेशेंट लॉगिन ऐप, मतलब ये पेशेंट का जो ऐप है वो हम लोग देख रहे हैं। ये पेज है, पेशेंट लॉगिन का पेज है। यहाँ पर जो पेशेंट्स होने वाला है, मतलब जो इस ऐप का इंश्योरेंस यूज़ करने वाला है, मतलब इंश्योरेंस जो हो उसको पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो साइन अप बटन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पर पेज आया है इंश्योरर रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर वो इंश्योरर का नेम, ईमेल वगैरह, फ़ोन नंबर एंड उसका जो वो ये इंश्योरेंस किसके लिए करना चाहता है, मतलब उसके लिए, मतलब इंडिविजुअली करना चाहता है तो पर डे 3 रुपीज़ एंड मंथली 90 रुपीज़ पड़ेगा। एंड वो जो उसका फैमिली के लिए करना चाहे तो उसको पर डे 10 रुपीज़ एंड मंथली 300 रुपीज़ देने पड़ेगा। एंड वो जो फैमिली के लिए करेगा उसमें अप टू 4 पर्सन्स ऐड हो सकता है उस एक इंश्योरेंस में। एंड वो उसका एनुअल इनकम भी हमको देना पड़ेगा, मतलब उसका एनुअल इनकम 2 लाख के अंदर हुआ तभी वो हमारा इंश्योरेंस ले पाएंगे। एंड उसको एक इनकम सर्टिफिकेट, उसका जो इनकम सर्टिफिकेट है, ईयरली जो इनकम सर्टिफिकेट जो उस डिस्ट्रिक्ट, वो जिस डिस्ट्रिक्ट का नागरिक है उस डिस्ट्रिक्ट का जो वेबसाइट है इनकम सर्टिफिकेट का, उससे देना पड़ेगा। उसका जो उस सर्टिफिकेट में जो यूनिक सर्टिफिकेट आईडी वो दिखना चाहिए। एंड वो जो सर्टिफिकेट वो यूनिक होना चाहिए। एंड उसका आधार कार्ड भी हमको देना पड़ेगा। एंड उसको ये टर्म्स एंड कंडीशन एंड उसको ये रिमेंबर रखना पड़ेगा जो वो अगर उसका कोई डिटेल्स अगर गलत हो या इनकरेक्ट हो या इनकम्प्लीट हो तो उसका जो एप्लीकेशन ये है ये रिजेक्टेड हो जाएगा। एंड यहाँ पर येस दबाने के बाद, ये टर्म्स एंड कंडीशन पे येस दबाने के बाद यहाँ पर सबमिट कर दिए तो ये फॉर्म हमारे पास सबमिट हो जाएगा। एंड हम लोग अगले 12 से 14 घंटे के अंदर उसके साथ कांटेक्ट करके उसका डिटेल्स वगैरह सब कुछ वेरीफाई करने के बाद उसको पोर्टल में एंट्री कर देंगे।
अब मैं फिर से आ गया हूँ ये लॉगिन स्क्रीन पर एंड यहाँ पर अब वो सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद मैंने एक डेमो अकाउंट क्रिएट किया था, डेमो अकाउंट। यहाँ पर ये साइन इन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, लॉगिन के लिए क्लिक कर दिया। यहाँ पर पेशेंट आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है, दे रहा हूँ एक डेमो। पेशेंट आईडी यहाँ पर है 2022013 एंड ये पासवर्ड है रोनित RANIT 123। दबाकर लॉगिन में क्लिक कर दिया। आप देख रहे हैं ये अकाउंट है मिस्टर रोनित दास का। उसका पेशेंट आईडी है 2022013। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर मेनू में है कंसल्ट नाउ, पहले यहाँ पर क्लिक किया। ये पर क्लिक करने के बाद उसको एक छोटा सा फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर पेशेंट नेम देना पड़ेगा। मैं दे रहा हूँ पेशेंट नेम RANIT रोनित दास। पेशेंट आईडी है 2022013 एंड वो डिपार्टमेंट दे रहा है जनरल मेडिसिन, एक डेमो डिपार्टमेंट है, उस पर जा रहा हूँ। यहाँ पर वो सिलेक्ट डॉक्टर करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर सिलेक्ट डॉक्टर मिस्टर श्यामसुंदर माहिती को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट में जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखा आ रहा है जो जनरल मेडिसिन डॉक्टर श्यामसुंदर माहिती का यहाँ पर है, डोंट सबमिट। ये फॉर्म को सबमिट करने की कोई